Okay, so Rahul, let's initiate your mock interview for Bhava Atomic Research Center. You're a civil engineer, so please confirm your favorite subjects to us. Sir, my favorite subjects are strength of material, RCC, and highway engineering, structural analysis, and geotechnical engineering. Okay, Rahul. So let's start with the strength of material in the beginning. I initiate with strength of material. So Rahul, let me ask you, what do you understand by free body diagram? So actually, free body diagram we draw to know all the forces acting, even the internal forces and external forces, to draw the SFD and BMD of the given structure. Are you sure internal forces are included in free body diagram? Yes, sir. Reaction forces are included. Do you think reaction forces are internal forces? Or they are from the external source? So they are acting because of external source. Do we need to make analysis, strength analysis of free body diagram? Strength analysis of free body diagram. That is a kind of stress is induced and all. So from free body diagram, we draw the SFD and BMD, and from there we get the idea of where the bending moment is positive and where the maximum shear is acting. That's why it helps in designing the beam or anything. In our design analysis, it is very important to know the BMD and SFD. So you mean that when we draw the SFD BMD, then we draw first the free body diagram and then we draw the SFD BMD. Yes, sir. So basic conventional method is this. But if someone is in means very experienced, he can draw the BMD SFD without drawing the FBD. But if we are starting and we want to do it in accurate manner, so we should draw the FBD first. Okay, Rahul, tell me, when you apply force on a component from outside, yes, sir, why the stress is induced in the body? So because when we apply the force on a body, then there is a sort of deformation, जो कि deformation होगा. और अगर सर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको सर जो इंटरनल उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेजिस्ट करेंगे डिफॉर्मेशंस को, तो वहां पर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा. एंड दैट रेजिस्टिंग फोर्स को सर अगर हम लोग क्रॉस एरिया से डिवाइड कर दें तो दैट विल गिव द स्ट्रेस. ये तो सॉलिड का केस है. अगर मैं अब यही फोर्स फ्लूइड पे लगाऊं तो क्या होगा? सर जिस तरह सॉलिड में सर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, उसी तरह सर अगर हम लोग फ्लूइड पे अगर हम लोग कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएं तो वहां पे सर बल्क मॉडुलस होता है एंड इट इज एनालॉगस टू मॉडुलस इलास्टिसिटी बिकॉज वहां पे सर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो. और इफ शियर फोर्स लगाएं फ्लूइड पे देन वहां पे सर कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी आते हैं इन प्ले. So are you sure that modulus of velocity is analogous to bulk modulus? In compression, sir. In compression. So you don't calculate bulk modulus for solids? Sir, we calculate bulk modulus for solid also, but it is more because it is the basically change in pressure. If we go by the formula of bulk modulus, it is change in pressure by volumetric strain dV by V. So it is mostly means in fluid use होता है sir mostly, but we can calculate for solid also. Now, can you tell me how to calculate the stress induced in the liquids? Sir, if we talk about shear stress, it can be calculated by Newton's formula. Tau is equal to mu du by dy. Okay, can you write that formula? Yes, sir. Tau is equal to mu du by dy. Yes, sir. Sir. Now tell me, no, you need not to show. Now tell me which one is input in this, which one is output. Sir, input is 1 minute, sir. Sir, the deformation which we are giving, it is the input. Deformation. Where you are giving deformation? Shear deformation, sir. Which one is shear deformation? Du by dy gradient. Do you think that is called shear deformation? Or there is another name? By dt. Sir, इसका सर नाम होता है velocity gradient.
बट टाउ का सर एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ म्यू d phi by dt. So that is called d phi by dt is called shear deformation, rate of shear deformation. That is the rate of shear deformation. Yes sir, rate of shear strain. Yes sir. That is shear deformation or shear strain? Sir, deformation and strain are both the same thing, I think. Are you sure? Do you draw the load deformation diagram? Of what, sir? Can you draw load deformation diagram? Means of what? Of any subject, of any material. Yes sir, load and deformation graph. If we apply a gradual load, it would be like this. What about stress strain diagram? For material, let's say mild steel. Stress strain diagram. For mild steel. Yeah. Sir. सर मैंने पॉइंट में दिखाना पड़ेगा सर सब कुछ. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन सेम है क्या? ये दोनों डायग्राम सेम? No, so sorry. Deformation per unit length is strain. No, would you like to change the answer of shear stress? Yes, sir. What is now shear stress? Sir, there I have defined that the input is rate of shear deformation, but actually input is rate of shear strain. Input is rate of shear strain. Sir, can I take 1 minute, sir? Just 1 minute. Yes, yes. Okay, now, yeah, now you have said that rate of shear strain is input and shear stress is output, right? Yes, sir. Yes, sir. Are you sure about that? Yes, sir. Okay, and you know stress strain diagram also? Yes, sir. And in stress strain diagram, what is input, what is output? Sir, strain is the input and sigma stress is the output. Okay, now how this stress is produced in solids and how the stress is produced in fluids? What is the main reason? Sir, in solids, due to intermolecular forces, sir, means सारे molecules साथ में होते हैं, तो वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं सर. तो वहां से हम लोगों को सर रेजिस्टिव फोर्स मिलता है which is magnitude wise equal to the applied force, and if we divide it by the area of cross section, that will be called stress. Okay, now what about in the fluids? It is because of intermolecular attraction, and then how the shear stress is induced in the fluids? Sir, in fluids, sir, it is basically due to the वहां पर सर रिलेटिव मोशन होते हैं between layers and layers. Okay. फ्लूइड में सर डिफरेंट लेयर्स में रिलेटिव मोशन होते हैं और उसी से सर हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो. तो दैट विस्कोसिटी इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द हिंड्रेंस टू द शियर डिफॉर्मेशन. अच्छा, जहां पे फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी होगी वहां शियर स्ट्रेस भी होगा, इज दैट ट्रू? यस सर. व्हाट अबाउट स्टैटिक फ्लूइड? सर शियर स्ट्रेस तभी इनटू प्ले आता है सर जब वहां पे रिलेटिव मोशन हो बिटवीन डिफरेंट लेयर्स. Okay, now how to get drag force in the fluids? How to get means what? How to calculate drag force? Yeah. Sir, if something is traveling in the fluid, means if we talk about the aeroplane, so sir air is also a fluid. So वहां पे सर जब हम लोग opposite to the direction of wind flow अगर हम लोग जा रहे हैं. Okay, tell me like अगर मैं तुम्हें एक ड्रैग स्ट्रेस दे दूं टाउ, तो ड्रैग फोर्स कैसे निकालेंगे फ्लूइड में? सर उसका हम लोग एरिया ऑफ लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे सर. एरिया ऑफ कांटेक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, राइट? एरिया ऑफ प्रोजेक्शन सर. यस सर. एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज दैट? सर जैसे कि अगर सर्कुलर बॉडी है, अगर स्फेरिकल बॉडी है सर, तो स्फेरिकल बॉडी का हम लोग अगर प्रोजेक्ट करें एरिया तो हम लोग को सर्कल में मिलता है. अगर मतलब फ्लूइड एक सर्कुलर बॉडी के अक्रॉस अगर फ्लो कर रहा है,
Yes sir. फ्लूइड इज फ्लोइंग अक्रॉस सर्कुलर बॉडी, Yes sir. Body. तो तुम ड्रैग फोर्स जो निकालोगे उसके लिए टाओ मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया कर दोगे, Yes sir. कॉन्टेक्ट एरिया नहीं करोगे। सर अगर वो कर्व बॉडी है सर, तो हम लोग कर्व बॉडी का एनालिसिस करते ही हैं उसको ये मान के, प्रोजेक्ट करके। आर यू श्योर और अबाउट अगर दैट? यस सर, कर्व का तो हम लोग एनालिसिस बाउंड्री लेयर फिनोमेना आपने किया है राहुल? किया है मतलब सर, मतलब बाउंड्री प्रैक्टिकली। लेयर बनती है सरफेस के अक्रॉस, यस सर। बाउंड्री लेयर में ड्रैग स्ट्रेस होती है। हाँ। अब उस बाउंड्री लेयर जहां जहां बनेगी उस सारे एरिया को आपको कंसीडर करना पड़ेगा ड्रैग फोर्स निकालने के लिए। ड्रैग फोर्स सर वहां लगती है सर, सरफेस पे। हाँ, तो सरफेस पे, पूरे सरफेस पे जहां जहां बाउंड्री बनेगी यस वो सर। कर्व सरफेस पे कर्व्ड बाउंड्री बन जाएगी। सर नो सर, एक्चुअली आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ बॉडी इन मींस हम लोग, अगर हम लोग एरोप्लेन की बात करें या फिर कोई स्फेरिकल बॉडी है सर। यू आर कैलकुलेटिंग थ्रस्ट फोर्स। ओके ओके ओके। डू यू थिंक दीज टू आर डिफरेंट और नॉट? डिफरेंट तो होंगे। Okay, now tell me, when you calculate the shear stress or for that matter any stress in the solid body, यस सर। then force comes first or stress comes first? Which is input, which is output? सर कैन आई आस्क सर, हम समझ नहीं आया क्वेश्चन। अगर मैं सॉलिड बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस्ड निकालूं तो पहले फोर्स आती है या स्ट्रेस आता है? पहले फोर्स आती है सर। पहले फोर्स अप्लाई करते हो आप। पहले फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां डिफॉर्मेशन होगा और उसको रेजिस्ट करने के लिए रेजिस्टिव फोर्स आएगा, और रेजिस्टिव फोर्स बाय एरिया इज बेसिकली द स्ट्रेस इंड्यूस्ड। एंड फ्लूइड्स में कैसा सिचुएशन है, पहले फोर्स आता है या पहले स्ट्रेस आता है? सर फ्लूइड्स में भी पहले हम लोग शियर लोड लगा रहे हैं, शियर तो लोड उसके कैसे लगा रहे हैं? सर टेंशियल टू सरफेस। लेट्स से द लिक्विड इज फ्लोइंग ऑन अ सरफेस। यस सर। तो आपने कौन सा लोड लगाया यहाँ पे? वहां पे लोड नहीं लगाया सर, वहां पे सर क्योंकि लिक्विड को अगर हम सरफेस से फेंकते हैं तो उसके उसके इंटर लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और उसके वजह से स्ट्रेस इंड्यूस होगा सर। हाँ, तो पहले स्ट्रेस आएगा, पहले स्ट्रेस आएगा। यस सर, पहले स्ट्रेस उसके आएगा, बाद फोर्स आएगा, फिर फोर्स आएगा। यस सर। और सॉलिड में पहले फोर्स आएगा फिर स्ट्रेस आएगा। यस सर। ऐसा कोई केस हो सकता है फोर्स है ही नहीं और स्ट्रेस इंड्यूस हो जाए सॉलिड्स में? यस सर, थर्मल कंडीशन में। जैसे सर अगर हम लोग दोनों एक बार को दोनों साइड से फिक्स कर दें और उसको सर टेम्परेचर राइज करें, तो हम लोग बेसिकली लोड नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे और स्ट्रेन भी नहीं हो रहा है। आप लोड लगा नहीं रहे हैं लेकिन फोर्स तो आ रहा है। हाँ, रिएक्टिव फोर्स आ रहा है सर, रिएक्शन फोर्स। और पहले फोर्स आया फिर स्ट्रेस आया। यस सर। तो एनी केस देयर वेयर देयर इज नो फोर्स बट स्ट्रेस इज देयर इन सॉलिड सर, या नो फोर्स इज देयर, स्ट्रेस इज देयर। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू गेट। अच्छा, आप मेरे को बताइए, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपने किया है। यस सर। इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में स्ट्रेंथ कहां से निकालते हैं किसी मटेरियल की? Sir, actually strength is basically of many types. If we talk about the yield strength, so yield strength is corresponding, sir, if we taking the example of a mild steel tensile curve, और अगर हम लोग yield strength की बात करें सर, वो corresponding to lower yield point होता है। lower yield point, yes sir। तो उसको लोअर यील्ड पॉइंट पे क्यों लेते हैं? सर लोअर yield point एक्चुअली सर, अगर हम लोग ग्राफ पे देखो तो ग्राफ माइल्ड स्टील कर्व में मेरा जो Fy होता है, सिग्मा वाई, वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है, बट लोअर yield point इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मिड yield स्ट्रेस। दैट्स व्हाई हम लोग सर उसको सर प्रोजेक्ट करते हैं जब वर्टिकल लाइन पे, तो उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। और आल्सो सर लोअर यील्ड पॉइंट इलास्टिक के रेंज में होता है, प्लास्टिक रेंज में होता है? सर प्लास्टिक रेंज में होता है सर। तो मटेरियल फेल कौन से पॉइंट पे कर जाता है टेक्निकली? टेक्निकली फेल करता है सर मटेरियल टेक्निकली। अच्छा हाँ सर, तो यील्ड पॉइंट को स्टिक करने के बाद।
यील्ड पॉइंट पे करता है या इलास्टिक पॉइंट पे करता है या प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट पे करता है? यील्ड पॉइंट पे सर। लोअर यील्ड पॉइंट पे? यस सर। लेकिन लोअर यील्ड पॉइंट तक तो वो ऑलरेडी प्लास्टिक रेंज में जा चुका है। सर एक्चुअली हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज सर लोअर यील्ड पॉइंट और अगर हम लोग देखें एक्चुअल यील्ड पॉइंट, सर वो ग्राफ में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। एक्चुअल तो यील्ड उससे पॉइंट क्या होता है? एक्चुअल व्हाट इज एक्चुअल यील्ड पॉइंट? सर एक्चुअल यील्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो सर जहां से डिफॉर्मेशन, जहां से सर वो मटेरियल हमारा यील्डिंग स्टार्ट हो जाए। तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सर इलास्टिक पॉइंट के बाद सर। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यील्डिंग एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? सर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात की जाए तो वहां पे जो अगर डिफॉर्मेशन हो रहे हैं वो कंप्लीटली रिट्रेस नहीं हो पाएंगे, वहां पे कुछ ना कुछ प्लास्टिक स्ट्रेन आ जाएंगे, परमानेंट स्ट्रेन। और यील्डिंग और इसमें डिफरेंस क्या हुआ फिर? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड यील्डिंग। सर यील्डिंग मतलब जैसे मटेरियल यील्ड कर रहा है तो इलास्टिक पॉइंट के बाद ही है। तो हम लोग सर सिविल इंजीनियरिंग में सर अब देखा जाए तो वहां पे हम लोग मानते हैं अगर हमारे मटेरियल में स्ट्रेन आ गया है तो हम लोग मानते हैं मटेरियल फेल कर गया है, वो एक्चुअली फेल करता नहीं है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को दे दे, माइल्ड स्ट्रिप का दे दे, उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं यस सर। और आपको बोलेगा कि एक पॉइंट बताओ जहां पे आप बोल सकते हो कि मटेरियल फेल कर चुका है, तो कौन से पॉइंट पे आप लगाओगे उसको? मैं इलास्टिक पॉइंट को बोल सकता हूँ सर। लेकिन आप जो स्ट्रेंथ निकाल रहे हो वो आप इलास्टिक पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हो, लोअर यील्ड पॉइंट पे निकाल रहे हो। यस सर। बट अगर सर हम लोग देखें तो वो कर्व में सर एक्चुअली इलास्टिक पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट भी सर अप्रोक्सीमेटली सेम जगह पे होते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ओके राहुल, कैन यू टेल मी ये जो आपका थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं कितनी होती हैं? 5 होती है सर। ये 5 की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? 1 या 2 से काम क्यों नहीं चलता है? सर 5 की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि सर हम लोग देखना चाह रहे थे कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल के लिए बेस्ट मीन्स बेस्ट थ्योरी कौन सा रिजल्ट देता है। तो सर एक्चुअली जब हम लोग कोई चीज परफॉर्म करते हैं तो हम लोग को एक बार में रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, हम लोग को चेक करना पड़ेगा। सर अगर हम लोग ब्रिटल की बात करें तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में ही मिल गया कि ब्रिटल के लिए बेस्ट है, लेकिन ये बेस्ट है तो हम लोग कंपेयर करना पड़ेगा बेस्ट क्यों है और कहीं बेस्ट नहीं मिल रहा है क्या। तो हम लोगों ने फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी किया, फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी किया, फिर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी किया। तो इन सब 5 एनालिसिस के बाद पता चला सर कि डक्टाइल के लिए बेस्ट आ रहा है जो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी है। ऑल्दो सर अगर हम लोग सर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पे रेस्ट्रिक्ट करते तो वहां भी रिजल्ट जो आ रहे थे डक्टाइल के लिए वो क्लोज आ रहे थे, 0.62 आ रहे थे। बट जब हम लोगों ने शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी किया तो आइडिया मिला कि नहीं अभी डक्टाइल के लिए और बेस्ट रिजल्ट भी मिल सकते हैं, इसलिए डक्टाइल के लिए बेस्ट रिजल्ट वहां से मिला। अब आपको डक्टाइल और ब्रिटल के लिए थ्योरीज पता है, राइट? यस सर। यस सर। तो ब्रिटल के लिए कौन सी थ्योरी यूज करेंगे आप? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सर। और डक्टाइल के लिए? सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी वो बेस्ट है तो सर अब डक्टाइल ये के लिए। दो थ्योरीज ही अगर हम पढ़े हम्म। इंस्टेड ऑफ 5, तो क्या इसमें हम्म। इशू आएगा? Why not only these 2 theories? Why do we study other 3 theories? सर टू गेट द एक्चुअल आइडिया और टू कंपेयर विथ, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे अगर वो थ्योरी यूज करते तो क्या होता। चलो, let me put my question this way. Do you consider any of other 3 theories in any situation? कि ये दो जो आपने बताई ये यूज नहीं कर रहे हैं, आपको और जो 3 आपने छोड़ दी उनको यूज करना पड़ रहा है? सर एक्चुअली मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी सर होता है एलएसएम में यूज, अगर आरसीसी की बात करें तो एलएसएम में सर हम लोग स्ट्रेन से डील करते हैं कि हम लोग जो ग्राफ विड्रॉ करते हैं सर वो स्ट्रेन कंट्रोल होता है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं सर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। आपने राहुल स्ट्रेन गेजेस के बारे में सुना है? स्ट्रेन गेजेस? यस सर। रॉसेट स्ट्रेन गेजेस सुना है सर। वो कौन सी स्ट्रेन मेजर करते हैं? कौन सी स्ट्रेन मतलब सर? स्ट्रेन कितने टाइप की होती है? सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करता है मेजर सर वो। अगर मेरे को shear स्ट्रेन मेजर करनी है तो कौन से गेजेस यूज कर सकते हैं? सर सेम गेज में सर अगर उसका म्यू पता होगा
तो हम लोग म्यू से सर निकाल सकते हैं लेटरल स्ट्रेन। Lateral, I'm not asking, I'm asking shear strain. Lateral strain is different from shear strain. सॉरी सर, shear स्ट्रेन निकालना होगा तो सर, तो shear स्ट्रेस जो लोड लगा रहे हो वो तो पता होगा हम लोग को। और अगर मैं आपको नॉर्मल स्ट्रेन दे दूं, नॉर्मल स्ट्रेन दिया हुआ है और स्ट्रेन सर, तो आपके पास है, यस सर, ऐसा निकल जाएगा। कैसे? सर फॉर्मूला से सर, या फिर हम लोग मोर से ड्रॉ कर सकते हैं। कितने स्ट्रेन गेजेस आपको चाहिए मिनिमम? मिनिमम 2 सर, मिनिमम। आर यू श्योर? उस फार्मूला में 2 स्ट्रेन गेजेस से काम चल जाएगा? सर अगर एक नॉर्मल स्ट्रेस नोन है तो 2 से काम चल जाएगा, नहीं तो 3 चाहिए फिर। ओके, ओवर टू यू रुचिन सर। Thank you, sir. Sir, I need to share the screen. Okay, राहुल आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस सर। ओके, अच्छा आप मुझे पहले बताएं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोर वाटर प्रेशर? सर पोर वाटर प्रेशर बेसिकली सर जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, हम लोग अगर किसी सॉइल की बात करें, सॉइल लेयर्स की, तो जहां तक हमारा वाटर लेवल होता है सर, अगर उस वाटर लेवल तक अगर हम लोग कैलकुलेट करें पोर वाटर प्रेशर, तो वो कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय गामा डब्ल्यू इनटू एच। नहीं, यू आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पोर वाटर प्रेशर होता क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर। बाय वाटर ऑन व्हाट? सॉइल सॉलिड्स। सॉइल सॉलिड्स। तो अच्छा, सॉइल के अंदर जो पानी है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? सॉइल के अंदर जो पानी है? नो सर। हाँ, या फिर सर एक्सेस प्रेशर सर, एक्सेस प्रेशर। ओके। अच्छा, ये कैपिलरिटी इफेक्ट आप 2 जगह बताएं जहां पे आपने देखा हो। सर एक तो सर बीचेस पे होते हैं सर, अगर बीच पे देखें तो वहां पे होता है कैपिलरिटी इफेक्ट। एंड और प्रैक्टिकली कैपिलरिटी इफेक्ट सर एक फ्लूइड में सर वो देखा है, तो सॉइल में नहीं बात करूं तो फ्लूइड में सर जो कैपिलरी राइज होता है। कहां पे? फ्लूइड में सर कैपिलरी राइज जो होता है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, मान ली कि ऐसा कोई एक कंटेनर है, ओके, यहाँ पे देयर इज वाटर, ओके, स्टैटिक वाटर है। अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, कुछ भी है, ओके, इस पे अब अगर ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं? सर एक तो ग्रेविटी फोर्स एक्ट हो रही है उस पे, उसका जो वेट होता है। उसके बाद सर उसका सर बॉयंट फोर्स लगेगा उसका फ्लूइड का। ओके, एंड ड्रैग फोर्स भी लग सकता है, ड्रैग फोर्स। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रैग फोर्स एंड बॉयंट फोर्स? सर अगर बॉयंट फोर्स की बात करें सर, तो वो सर बॉयंट फोर्स सर बॉडी पे लग रहा है और वो उसके इफेक्टिव वेट को सर, उसको वेट को कम कर देता है। ओके, हमारा और जो ड्रैग बॉडी फोर्स? और ड्रैग फोर्स के लिए सर हम लोग कैलकुलेट जब करते हैं तो वहां पे हम लोग सर बॉडी को, जैसे सर ये स्फेरिकल बॉडी था, तो उसको हम लोग लेते हैं सर, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन लेते हैं और फिर निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग से, CD इंटू हाफ रो AW इंटू V स्क्वायर। तो वहां पे वेलोसिटी का रूल आता है सर। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्या होता है ये, अदर देन द फॉर्मूला होता क्या है? ओके, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी T60/T10। सर एक्चुअली ये हम लोग को सर रेंज बताता है कि हमारा जो ग्राफ होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, उसका रेंज क्या होगा। मींस सर पार्टिकल्स कितने सारे पार्टिकल्स हैं जो कि सेम साइज के हैं।
सीसी और सीसी सर हम लोग को बताता है सर कि ग्राफ का नेचर क्या होगा, मतलब ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा। ओके, ग्राफ का नेचर और एनीथिंग अबाउट पार्टिकल साइज और पार्टिकल शेप समथिंग, ये नहीं यस सर, बताते? यस सर, ये सर सीसी के वैल्यू जितना ज्यादा होगा सर उतना ज्यादा स्फेरिकल होते जाएगा बॉडी। ओके, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये स्फेरिकल होता जाएगा। ऑलराइट। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर रहे हैं, ओके, यस तो सर, इसमें क्लेई पार्टिकल कैसा होता है? फ्लेकी होता यस सर, है ना? बट जो हम लॉ यूज करते हैं, स्टोक्स लॉ, उसके अंदर अजम्पशन होता है कि द पार्टिकल शुड बी स्फेरिकल। यस सर। ओके, तो वहां पे हम क्ले पार्टिकल के लिए कैसे लगा सकते हैं स्टोक्स लॉ? सर उन्होंने पहले ही एज्यूम कर लिया ये तो, ऑल्दो हम्म ये एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं देगा सर, हम्म ऑब्वियस रीजन है। बट सर क्योंकि पहले हम लोग ने एजम्पशंस में यही कर लिया कंसीडर कि जो सॉइल सॉलिड से वो स्फेरिकल इन शेप है हम्म और डायमीटर लेस देन 0.1 mm है, हम्म 0.01 mm। हम्म तो हम लोग सर लगा लेते हैं स्टोक्स लॉ। ओके, चलिए ठीक। अच्छा, आपने डायरेक्ट शेयर टेस्ट लैब में किया है? डायरेक्ट शेयर टेस्ट शायद नहीं किया है। आपको पता है क्या होता है? यस सर पता है। क्या होता है? सो डायरेक्ट शेयर टेस्ट एक्चुअली कोहेजनलेस सॉइल पे किया जाता है हम्म टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन सर। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। ये है हमारा एक शेयर बॉक्स। यस ओके, सर। दिस इज अ शेयर बॉक्स। और यहाँ से ऐसे आके ये सपोर्ट दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे मान लो कि हमने कोई नॉर्मल स्ट्रेस लगाया। ओके, एनी वैल्यू, लेट्स से 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का नॉर्मल स्ट्रेस लगाया। अब क्या हो रहा है, हम लैटरल साइड से इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ओके, और ऑब्वियसली फोर्स जो लगेगा वो इंस्ट्रूमेंट से लगेगा। ओके, फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी अभी तक फेल नहीं करी है, शेयर बॉक्स में अभी तक फेलियर नहीं हुआ है। फोर्स लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, एंड सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है लैब में। यस सर। ओके, तो आपका जो ये फोर्स है ये एज इट इज इसी जगह पर रुक जाता है और हमारा स्पेसिमेन अभी तक फेल नहीं किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट शेयर ग्राफ किस तरीके से बनना चाहिए? सर एक्चुअली इस टेस्ट में भी सर इसका जो ड्रॉबैक ये है सर कि हम्म इसने इसने सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को माना है कि ओरिजिनल एरिया के, ऑल्दो हम्म सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ जी, क्योंकि हम लोग शेयर लोड लगा रहे हैं तो हम लोग को सर एक्यूरेटली सर मतलब ऑन ड्यूरिंग कैलकुलेशन हम लोग को लेना चाहिए था इंस्टेंटेनियस एरिया। हम्म बट यहाँ पे सर इसका ड्रॉबैक ये डायरेक्ट स्टेटस का ये है कि ये सर एरिया मानता है कि जो इनिशियल हम लोग था एरिया वही एरिया है, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ये अज्यूम किया जाता है जो कि नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। अब आप पॉइंट पे नहीं आ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, डायरेक्ट शेयर ग्राफ किस तरीके से बनेगा? किस तरीके से बनेगा? हम्म नो आइडिया सर। ओके, आपने क्या बताया और आपका फेवरेट यही आपके फेवरेट सब्जेक्ट है? यस सर, यस। सॉरी। ओके, व्हाट इज वेल फाउंडेशन? सर वेल फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन, और इसका सर डाया जो होता है जो हम लोग बोरिंग करते हैं सर वो बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, अच्छा आपको फील्ड का कोई एक्सपीरियंस है क्या? फील्ड एक्सपीरियंस, साइट एक्सपीरियंस, एनीथिंग? सर आई हैव डन एन ट्रेनिंग इन हाईवे सर इंजीनियरिंग, सो सॉइल्स का नहीं है सर। ओके, एनीवे ठीक है। अच्छा देखो, मैंने आपसे लेट्स टॉक अबाउट द फीडबैक, योर पार्ट इज ओके। देखो, डायरेक्ट शेयर टेस्ट वाला जो ये क्वेश्चन पूछा है, यस सर। देखो इसके अंदर एक लिमिटेशन होता है कि हमें स्ट्रेसेस का वैल्यू तभी पता होता है जब बॉडी फेल कर जाती है।
ओके, फाइनल स्ट्रेसेस आर नोन ओनली एट द टाइम ऑफ फेलियर। अगर बॉडी फेल नहीं कर रही है तो यू एक्चुअली कैन नॉट कैलकुलेट व्हाट विल बी द स्ट्रेस इन दिस डायरेक्शन। नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा वो हम नहीं बता सकते। तो फॉर दिस सिचुएशन आपका जो ग्राफ है बिटवीन डायरेक्ट स्ट्रेस, एक ही होता है और एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, इट विल बी जस्ट अ पॉइंट हियर 80। ओके, क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस का तो वैल्यू ही नहीं पता हमें, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसके कारण जो हमें शियर स्ट्रेंथ मिलना था वो हमें नहीं पता चलेगा। ओके, तो इसका जो ग्राफ है दैट विल बी ओनली अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सिग्मा एक्सिस। सर एक्चुअली सर एक्चुअली जियोटेक मैंने पढ़ा ही नहीं है सर, क्योंकि मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे वहां बोलना है और मेरे पास टाइम भी 2-3 दिन अभी है, तो मैंने बोल दिया सर, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं जियोटेक अभी तक। अच्छा ना, ओके, एनीवे थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि आप ओके इससे ओके बोलोगे तो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं। ओके ओके, एल्स आपने CUCC ठीक है, आपने सही बताया कि कौन सा शेप दे रहा है और क्या दे रहा है, स्फेरिकल होता जाएगा, दैट वाज गुड, अच्छा एक्सप्लेनेशन था। ओके, एल्स आई गेस टेक्निकल साइड फ्रॉम मी इज ओके, बाकी विजेंद्र सर आपको फीडबैक देंगे अभी। Okay, Rahul, as far as my subject is concerned, देखो आप जो भी आंसर कर रहे हो ना यार, सोच के आंसर करो। आप आंसर कर दे रहे हो फिर सोच रहे हो कि सर क्या इसका आंसर होना चाहिए था। जैसे शियर स्ट्रेस के केस में शियर स्ट्रेस, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की जगह डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन। होता क्या है कि अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाए ना, देन मार्क्स आर कट। जैसे अगर सपोज आप स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन बोल रहे हो, सेम ही चीज है, तो ये ब्लंडर माना जाता है इंटरव्यूज के अंदर। अगर कोई छोटी चीज नहीं आती है तो समझ आ जाता है, लेकिन अगर बड़ी चीज नहीं आती है तो समझ नहीं आता। अब वो क्या करेगा, क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करेगा, फिर आपको सडनली डेप्थ में ले जाएगा, सडनली। जैसे ये स्ट्रेन रेट वाला, ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन गेजेस वाला क्वेश्चन है, यस ये स्ट्रेन गेजेस वाला क्वेश्चन है। तो अब इसमें आप जैसे ही इसने बोला कितने स्ट्रेन आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको 3 स्ट्रेन गेजेस की रिक्वायरमेंट होती है शियर स्ट्रेस निकालने के लिए, राइट? यस तो 3 स्ट्रेन गेजेस की रिक्वायरमेंट, अगर आपके 3 स्ट्रेन गेजेस हैं जिसमें सिग्मा थीटा 0, थीटा 90 डिग्री एंड थीटा सम 45 डिग्री, उससे आपका शियर स्ट्रेन निकल जाएगा। दिस इज वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल जो हम न्यूमेरिकल्स में भी करते हैं। वहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो रहा था सर। एक्चुअली वहाँ पे सर जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सर, तो वहाँ पे एक डायरेक्शन का स्ट्रेन दिया रहता था, तो मेरा वहां पे चला गया कि अगर 1 इज नोन देन 2 चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप सोच के, बड़े ध्यान से सोच के फिर तब आंसर करना है राहुल। मेरा फीडबैक ये है कि आपको नॉलेज है, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी में है ना आंसर करने की BARC में, तो आपके गलत होते जाएंगे आंसर। जल्दी में ना तो वो होते हैं ना आपको होना है। आप आराम से आंसर करो, सोच के, क्वेश्चन सुन के फिर आंसर करो। और सर क्वेश्चन सुनने के बाद अगर 1 मिनट या फिर सर, मेरा क्या होता है सर, मैं बता रहा हूँ पर्सनली कि सर अगर 1 मिनट तक मैं अगर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। ये नहीं, सही है 1 सर? मिनट 1 मिनट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है। मैं बोल सर रहा हूँ 1 10 मिनट नहीं सर, सेकेंड। मतलब अगर सर सपोज 30 सेकेंड या 45 सेकेंड के अराउंड मुझे लग रहा है सोचने में, तो मुझे सर और देर चाहिए, क्या फिर बोल देते सॉरी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सोच के आंसर करना है, ओके सॉरी नहीं बोलना है। आपको सोच के आंसर करना है, क्योंकि BARC में ज्यादा लंबा इसीलिए चलता है कि वो चाहते हैं आप सोच के आंसर करो। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो अकॉर्डिंगली आपको राहुल करना पड़ेगा उसका। ओके सर। फाइन, बाकी ठीक है। बाकी आप तैयारी करते रहे। बाकी ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए इनको लिखो कॉपी में और ट्राई करो कि कहाँ पे गलती हुई। सेल्फ एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डू योर सेल्फ एनालिसिस कि यार ये तो मेरे को आता था, मेरे से गलत कैसे हो गया। वही होता है जैसे तुम टेस्ट सीरीज लगाते हो ना, तो तुम्हें पता लगता है यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, गलत हो गया। फिर वो प्रैक्टिस होती जाती है, एंड वन फाइन डे योर एक्यूरेसी इज गुड। सिमिलरली इन द मॉक इंटरव्यूज व्हाट हैपेंस इज, आप मॉक इंटरव्यू दोगे, कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर दोगे, फिर आपको लगेगा ओ यार ये तो मेरे को ऐसे आंसर कर सकता था, ये क्वेश्चन तो सिंपल ही था। तो वो जो रियलाइजेशन है कि हाँ यार ऐसे नहीं, मेरे को ये करना है, वो रियलाइजेशन आपको तैयार करती है। डन राहुल? और सर एक क्वेश्चन था सर। सर मैंने एक स्नैप में एक क्वेश्चन सुना था सर, आपने पूछा था कि जो 5max/2 लेते हैं सर हम लोग स्ट्रेन का, अगर मोहर स्ट्रेन अगर ड्रॉ करें तो उसका रेडियस जो होता है सर 5max/2 देता है।
तो उसका एग्जैक्ट रीजन सर थोड़ा बोल दीजिए सर, सर्च करूंगा, टाइम लग जाएगा सर बहुत, अब टाइम नहीं है। आप 5/2 क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन है। यस सर। एक्चुअली क्या है कि अगर आप शेयर देखोगे ना, शेयर स्ट्रेसेस कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जानते हो आप। यस सर। तो एक सरफेस और दूसरा सरफेस दोनों ही शेयर कर रहे होते हैं, वो दोनों कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट। अब बस अब इतना ही आंसर करना। ये इसलिए होता है बिकॉज शेयर स्ट्रेस और दूसरी स्ट्रेसेस में डिफरेंस होता है। तो दूसरी स्ट्रेसेस होती हैं वो अकेली लग सकती हैं, बैलेंस बना सकती हैं। शेयर स्ट्रेसेस होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री लगती हैं हमेशा। यस सर। और वो उन दोनों का इम्पैक्ट होता है जो शेयर स्ट्रेन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जब हम लोग को देखना होता है इंडिविजुअल, तो हम लोग बाय 2 लेते हैं। बाय 2 ले लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू। राइट राहुल, ओके थैंक यू।